How can you believe in something just because someone who is sacred is your friend? Is that all you've got? Well, I don't believe just because I have friends. I believe so because it's the truth and I won't close my eyes just because the ministry does not. This I can say by telling you that Sybil Patricia Trelawney, who told that Harry Potter will be the chosen one, and he and only he can vanquish Dark Lord, has had other orders. Then we should believe that the Dark Lord has back, and Mr. Cornelius Fudge and he can't joke things on the resurrection of Dark Lord. I think you should consider to believe in the resurrection. Reginald said can't be true, but Sybil Trelawney also said Voldemort in 1991, whereas Voldemort was kind of destroyed. So we can say that Voldemort can't be back because of that prophecy. So Reginald Cattermole can't be right because of that Sybil. Already taken again. Roti board. Peter. Neville Longbottom. Files. That's it for now. Agri, you have floor for 90 seconds. In 93, what took place? Hagrid took the baby Harry to his relative Dursley's in Pivot Drive, Little Whining in Surrey. I saw the destruction he caused, the little boy in his crib crying, surrounded by his parents' dead bodies. That murder was committed by Voldemort. If anyone is power-hungry, it is obvious he is the one, not Dumbledore. When Voldemort tried to kill Harry, the curse backfired when he was dead because he had not enough human in him to die. I have completed it as it does. Let's not let Voldemort cause any more death and destruction than he already has. Drug trafficking has emerged as a power which is controllable by none and accessible by all, and this factor only leads to people enjoying the device. As a superpower and a responsible member of the UN, US would like to shed light on the power of the drug. The United States has adopted policies which encompass rules for the prevention of smuggling and trafficking, which share at checkpoints and public places of smuggling. The United States believes in bilateral agreement which leads. Before we recognize more speakers, are there any delegates? India, followed by Afghanistan, followed by Denmark. That's it. Delegate of Italy, you recognize. Under Article 38 of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 is amended by the 19th of Convention on Psychotropic Substances of 1973 to end education, rehabilitation and social rehabilitation of the people involved. Italy urges for cooperation by all the countries to take Italy in December 2000 hosted the high-level political thinking conference for the UN Convention against transactional and the protocols thereto are Right, so in this unmoderated caucus, all of you should get together and decide about. वर्ड यूज कर सकते हो आगे अब क्या इवेंट है, क्या चल रहा है, आप इवेंट कौन सी यहाँ पे क्या इवेंट चल रहा है, कौन सी कमेटीज बनाई गई, क्या है? यहाँ पे मिलेनियम स्कूल एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस इवेंट होस्ट किया है
यहाँ पे इन्होंने कमिटी सिमुलेट किए हैं डिफरेंट जो यूनाइटेड नेशंस में सिमुलेट होती हैं, और स्टूडेंट्स आते हैं टेकिंग द रोल ऑफ डेलीगेट्स टू द यूनाइटेड नेशंस, अपने एम्बेसडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कंट्रीज़ के, और अपनी कंट्री की पॉलिसी भी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट करके कंसेंसस लाते हैं सॉल्यूशंस पे। जैसे अभी यहाँ पे UNODC चल रही है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो हम लोग आज इन्फ्लक्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मैक्सिको डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिकली सारे डेलीगेट्स अपनी व्यूज़ दे के बात करते हैं कि ये ड्रग्स की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी दुनिया में, मैक्सिको से जो ट्रांजिट कंट्री बहुत बड़ी बन गई है, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, और इधर उधर बहुत ज़्यादा टेरर फैलाती है, ऑर्गेनाइज क्राइम को फंड करती है, उसके अलावा डिफरेंट माफियाज़ को फंड करती है, और इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे काउंटर करें, ये सब एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में होता है। हम लोग वर्ल्ड इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे UNODC में अभी डेलीगेट्स वही डिस्कस कर रहे हैं कि आगे चल के डिस्कशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और मैं होप करता हूँ कि बहुत एंटरटेनिंग हो और इंगेजिंग डिस्कशन हो। ये इवेंट का मोटो क्या होता है, और जो यहाँ पे डेलीगेट्स हैं सब स्टूडेंट्स हैं यहीं के या बाहर से भी आते हैं? नहीं, सब स्टूडेंट्स होते हैं डेलीगेट्स, डिफरेंट स्कूल से आते हैं। मिलेनियम स्कूल एक नेशनल लेवल MUN ऑर्गेनाइज़ किया है, तो बाहर से भी काफ़ी डेलीगेट्स आए हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ से। और साथ में इसका मोटो बेसिकली यही होता है कि ये यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा एजेंडा होता है उसके बारे में एडुकेट करते हैं सब लोगों को। उसके अलावा डिफरेंट जैसे ड्रग की प्रॉब्लम है, एक और हमारी कमेटी में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिस्कस हो रही है, तो ऐसे जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ फेस करता है, इन पे बहुत एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं डेलीगेट्स को, बिकॉज इवन दो हम लोग एक्चुअली में UN में नहीं बैठे हुए हैं, और एक्चुअली में इन प्रॉब्लम को हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं दे सकते इन प्रॉब्लम्स को, और एक्चुअली पॉलिसियों को अफेक्ट नहीं कर सकते, बट सिंस हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं इन सब डिसीजंस में, सिंस हम लोग को ये सब प्रॉब्लम्स अफेक्ट करती हैं, ये MUN हमें इन प्रॉब्लम्स पे पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने में हेल्प करता है, और इसलिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों के लिए। मेरा नाम राग कोहली है। थैंक यू। तो क्या हो रहा है इसमें? आज कॉलेज में क्या इवेंट हो रहा है, कौन सा कॉलेज है और कितने दिन चलेगा इवेंट? ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, विच इज़ वो जो एक UN का मॉक होता है, और मिलेनियम में हो रहा है 2 दिन के लिए आज। और क्या क्या इवेंट हो गए इसमें, क्या क्या कितने दिन चलेगा? हम लोग पास 4 कमिटीज़ हैं। UNODC जिसमें आप अभी हैं, और विच इज़ द जो है ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम, और विद रेफरेंस टू मैक्सिको एंड नार्कोटिक्स और ड्रग्स के बारे में। और फिर हमारे पास है हिस्टोरिक सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे टॉपिक एजेंडा है हमारा स्विस कैनाल, वो हिस्टोरिक है। और फिर हमारे पास है एक अनकन्वेंशनल कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, जो हैरी पॉटर सीरीज में बेस्ड है। और हमारे पास है एक और विच इज़ द अदर वन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल HRC। इस इवेंट का मोटो क्या है, मेन मोटो क्या है, मोटिव क्या है? मोटिव है कि ग्लोबल इश्यूज़ पे हम लोग रेजोल्यूशंस पास करें, सोल्यूशंस ढूंढें, लॉबीज़ डेलीगेट्स के साथ लॉबीज़ करनी होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आज जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है उसमें आप लोगों को टीचर्स का कितना सपोर्ट मिला और किसका सपोर्ट मिला है? टीचर्स का हमारा बहुत सपोर्ट मिला है। मेनली तो सारे बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया पूरा इवेंट। 2 टीचर्स थी हमारी, शीबा मैम और गुंजन मैम, उन्होंने हमारी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्प किया, डेलीगेट्स को असाइन करना, उनकी पोर्टफोलियोज कमिटीज़, बाकी रूम्स में उनके ले जाना, और ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह वगैरह। तो टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया हमको। ये जो इवेंट हो रहा है इस सिलेबस से बिल्कुल अलग होता है, कैसे इस चीज़ तैयारी करते हो आप? सर ये एक्चुअली जो MUN हो रहा है ये बहुत इंडिया में बहुत फेमस हो गया आजकल, बहुत जगह कर रहे हैं। तो हमें जब पता चला कि MUN के बारे में, तो हम लोग ने सोचा कि हम भी एक कर लेते हैं। सिलेबस पे ज़्यादा फेंक होता है, हम लोग एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ लीजिए। वी प्रिपेयर दिस, हम लोग आफ्टर स्कूल रुकते हैं, बिफोर स्कूल रुकते हैं, पीरियड्स के बीच में भी पीरियड्स में आ जाते हैं, एंड देन वी प्रिपेयर इट एंड वी डू इट। वत्सल।